Hi all, good day. Let's start the next topic of solid state that is packing of particles in a crystal lattice. What is the packing of particles in a crystal lattice that we are going to see. Here the constituent particles of a crystalline solid are close pack. यहाँ पे जो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के वो कैसे होंगे, क्लोजली पैक होंगे. So while describing these packing particles, they are treated as a hard sphere. जब हम इस पैकिंग पार्टिकल्स की बात करेंगे तब हम इनको कंसिडर करेंगे दे आर एज लाइक एज अ हार्ड स्पीयर, दैट इज लाइक दिस. दे आर ट्रीटेड एज अ हार्ड स्पीयर means these packing particles are denoted by hard sphere. Then second, the closeness of particles maximize the interparticular attraction. जितने ज़्यादा ये particles close होंगे उतना ज़्यादा उनके बीच में interparticle attractions होगा. Then the number of neighboring spheres that touch any given sphere its coordination number. मतलब इस स्पीयर के कांटेक्ट में जितने स्पीयर होंगे वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे शो किया ये जो बीच वाला स्पीयर है उसके कांटेक्ट में ये दो स्पीयर है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, मीन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस इज 2 लाइक दिस. देन मैग्नीट्यूड ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज अ मेजर ऑफ कॉम्पैक्टनेस ऑफ स्पीयर इन अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर. व्हाट ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर का मैग्नीट्यूड है वो क्या डिनोट करता है, क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द कॉम्पैक्टनेस ऑफ स्पीयर इन अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर. तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर में स्पीयर का कॉम्पैक्टनेस जो है हम इस कोऑर्डिनेशन नंबर से मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर से मेजर करते हैं. देन लार्जर द कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोजर आर द स्पीयर टू ईच अदर. जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा उतना वहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी द क्लोजर आर द स्पीयर टू ईच अदर. मतलब स्पीयर ज़्यादा क्लोज होंगे. जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर उतने ज़्यादा स्पीयर एक दूसरे को क्या होंगे, ज़्यादा क्लोजली अटैच होंगे, क्लोजली पैक होंगे. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन नंबर. लेट्स सी द क्लोज पैकिंग in one dimension. We are going to see now close packing in one dimension. After that we are going to see 2 dimension, 3 dimension like this, 2 dimension and 3 dimension like this. Close packing in 2 dimension and 3 dimension, that we are going to see. That is 1D, that is 2D and that is 3D. 1D, 2D, 3D means what? There are 3 axes, x, y and z. 3 directions are there, x, y and z. Means in a 1D we are going to measure the dimension in only one direction. 2 dimension means we are going to measure the dimension in 2 direction. And 3 dimension means we are going to measure the dimension in 3 directions like this. That is the meaning of the 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. So that now we are going to see the close packing in 1 dimension. What is meaning of this close packing in 1 dimension? Let's see that. Let's see the close packing in 1 dimension. 1 dimension means this is a figure A. This is a figure A. This is a figure of 1 dimension close packing. In this figure, this shows the layer of 1 dimension. This shows the layer of what? 1 डायमेंशन मीन्स एक ही डायरेक्शन में. यहाँ पे 3 डायरेक्शन होंगी, एक्स, वाई एंड जेड. दैट इज 3 डायरेक्शंस विल बी देयर, एक्स, वाई एंड जेड्स. मतलब ये जो एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे डायमेंशंस डिफाइन कर रहा है. दैट इज द लेंथ, और इट कैन बी लेंथ, इट कैन बी हाइट और इट कैन बी विड्थ, एनी वन बिटवीन देम. मीन्स ओनली 1 डायमेंशन इट इज शोइंग, राइट. इट इज़ अ 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. यहाँ पे स्पीयर कैसे, स्पीयर जो है ये जो बीच वाला स्पीयर है, दिस स्पीयर इज अटैच विद दिस स्पीयर्स इन अ सिंगल डायरेक्शन, सो दैट इट इज अ क्लोज पैकिंग इन 1 डायरेक्शन. दिस स्पीयर पार्टिकल now in contact with the
another these two particles. This is 1 and this is 2. So the coordination number will be what here? The coordination number of this one dimensional structure is 2. Let's see the closed packing in 2 dimension. Let's see the closed packing in 2 dimension. Here it is defined by 2 ways. This closed packing in 2 dimension is defined by 2 ways. The first is square closed packing, and second is hexagonal closed packing. Hexagonal close packing. By these two way we can define the closed packing in 2 dimension. Let's see the one by one. अभी closed packing in 1 dimension is what? Closed packing in 2 dimension, in which we are going to see the square closed packing. What is square closed packing? That we are going to see. Now in 2 dimensions, closed packing in 2 dimensions, there are dimensions will be defined in 2 directions. In closed packing in 2 dimensions, the dimensions are defined in 2 directions, right? So that here we can see the 2 ways of closed packing in 2 dimension, that is square closed packing and hexagonal closed packing. Let's see that. Here this is a square closed packing. This figure B shows the square closed packing. Now in this figure what happens? This first layer of this sphere is overlapped with the second layer, then third layer and fourth layer, like this. अभी यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर सेम एग्जैक्टली उसके ऊपर सेकंड लेयर को ओवरलैप किया है, सेम एग्जैक्टली ऊपर उसके थर्ड लेयर को एग्जैक्ट ओवरलैप किया है, देन थर्ड लेयर के एग्जैक्टली ऊपर फोर्थ लेयर को ओवरलैप किया है. यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड लास्ट लेयर. फर्स्ट लेयर के ऊपर एग्जैक्टली ऊपर और बिलो, यू कैन से दैट इज exactly below. If you go, the same layer is overlap there, then there again same layer is overlap there in the square close packing. तो इसको हम बोलेंगे मीन्स दिस इज ए लेयर, तो ए लेयर हो गई, राइट. तो सिमिलर लेयर यहाँ पे भी ओवरलैप की, तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप लेयर, सेम लेयर इज ओवरलैप exactly below its, that is also a layer. This is also what? A layer. So that this pattern is known as A type pattern. A type pattern. A type pattern. And if you observe, this is the here, this is a middle sphere. इस मिडल स्पीयर के अटैच में आपको दूसरे 4 स्पीयर यहाँ पे दिखेंगे. दिस इज़ इसके कांटेक्ट में, ये मिडल स्पीयर के कांटेक्ट में. अभी यहाँ पे एक स्पीयर कांटेक्ट में है, ये दूसरा स्पीयर उसके कांटेक्ट में है, और ये तीसरा स्पीयर उसके कांटेक्ट में, और दिस इज़ फोर्थ. हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पीयर्स आर देयर? 1 2 3 4. लाइक दिस 4 स्पीयर्स आर इन कांटेक्ट of this middle sphere, so that the coordination number of the square closed packing equal to 4. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया. तो अभी ये जो पॉइंट है, इसके सेंटर पॉइंट जो अटैच स्फीयर है उनका सेंटर पॉइंट ज्वाइन करो, यू विल गेट द स्क्वायर स्ट्रक्चर. इसलिए हम इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग. दैट इज अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग. Okay, let's see the next type of the 2-dimensional closed packing, that is hexagonal
क्लोज पैकिंग। व्हाट इज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या है वो हम देखेंगे अभी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, लेट्स सी दैट। इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दिस इज अ लेयर 1, दिस इज अ लेयर 1 एंड दिस इज अ लेयर 2, दिस इज अ लेयर 1, इसको हम ए लेयर बोलेंगे। दिस ए लेयर के डिप्रेशन में, दिस इज अ डिप्रेशन, इसको हम डिप्रेशन बोलेंगे। इसके डिप्रेशन में यहाँ पे सेकंड लेयर को पुट किया गया है। द सेकंड लेयर इज पुट हियर, दैट इज अ बी लेयर। और अलग लेयर हो गया अभी, क्योंकि इन दोनों के डिप्रेशन में सेकंड लेयर को पुट किया है, राइट। तो ये हो गया आपका सेकंड लेयर, दैट इज अ बी लेयर। अभी यहाँ के सेकंड लेयर के बिलो जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर यहाँ पे कैसे पुट किए, सेम एज अ फर्स्ट लेयर। थर्ड लेयर दैट इज सेम एज फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के थर्ड लेयर कैसे है, दैट इज सेम एज द फर्स्ट लेयर। मीन्स इसके डिप्रेशन में इसको पुट किया गया है, इनके डिप्रेशन में, इन दोनों के डिप्रेशन में यहाँ पे थर्ड लेयर को पुट किया गया। सिमिलरली फोर्थ लेयर, इनके डिप्रेशन में फोर्थ लेयर को पुट किया गया। मतलब ये जो थर्ड लेयर है दैट इज ऑल्सो ए टाइप लेयर विच इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर, इसलिए दिस इज ए लेयर। एंड दिस सेकंड लेयर इज सिमिलर टू फोर्थ लेयर इज सिमिलर टू सेकंड लेयर, सो दिस इज अ बी लेयर। तो इसको हम बोलेंगे ए बी पैटर्न, दिस इज नोन एज ए बी पैटर्न। अभी यहाँ पे जो बीच वाला स्पीयर है, दिस इज द सेंट्रल स्पीयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस स्पीयर 1, स्पीयर 2, स्पीयर 3, स्पीयर 4, 5 एंड 6। ये यहाँ पे जो बीच वाला स्पीयर है, सेंट्रल स्पीयर, सेंट्रल पार्टिकल दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस 6 स्पीयर, मीन्स 6 पार्टिकल के वो कॉन्टैक्ट में है। इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा, ये सेंट्रल स्पीयर 6 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में, 6 स्पीयर के कॉन्टेक्ट में, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा वो कितना आएगा, दैट कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 हियर। दैट इज नोन एज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। नाउ हाउ इट इज नोन एज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे ये जो 6 स्पीयर है, इनके सेंट्रल पॉइंट ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो सो दैट दिस इज नोन एज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, दैट इज नोन एज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, that is a hexagonal close packing in 2 dimension. This is about the close packing in 2 dimensions. Let's see the third pattern or third type, that is a close packing in 3 dimension. What is a close packing in 3 dimension? 3 dimension में अभी देखेंगे, हमने 2 dimension देखा, 1 dimension देखा। Let's see the close packing in 3 dimension, 3D. It is defined by 2 ways, the stacking of square close packed layers and the stacking of 2 hexagonal close packed layers. By these 2 ways we are going to see this close packing in 3 dimension. Let's see that one by one. Stacking of square close packed layers, stacking of square close packed layers. अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले, जो स्क्वेयर क्लोज पैक लेयर्स थी उसको हम यहाँ पे एक के ऊपर एक लेयर ओवरलैप करने वाले हैं, लाइक दिस। लेट्स सी दैट। लेट्स सी द स्टैकिंग ऑफ स्क्वेयर क्लोज पैक लेयर्स। हियर व्हाट हैपन, दिस स्क्वेयर क्लोज पैक लेयर्स के ऊपर एक लेयर यहाँ पे नीचे, दिस इज अ फर्स्ट लेयर, दिस इज अ फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर ये दूसरी लेयर यहाँ पे बिछाई हमने, इसके ऊपर तीसरी लेयर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की हमने बिछाई, देन थर्ड लेयर, ऐसे हमने ऐसे 3 लेयर्स यहाँ पे बिछाई एक दूसरे के ऊपर। तो ये फर्स्ट लेयर हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दिस, दीज आर द 4 लेयर।
ओके, एक दूसरे के ऊपर हमने बिछाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पैटर्न है मतलब ये एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर का जो स्पीयर है उसके ऊपर एग्जैक्टली सेकंड लेयर का स्पीयर आ रहा है। थर्ड लेयर के स्पीयर जो है वो एग्जैक्टली सेकंड लेयर के स्पीयर के ऊपर आ रहा है। फोर्थ लेयर का जो स्पीयर है एग्जैक्टली थर्ड लेयर के स्पीयर के ऊपर आ रहा है। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर इन अ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स। तो यहाँ पे जितने भी लेयर्स है वो कैसे सेम टाइप के हैं, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे ए लेयर्स एंड दैट इज अ ए टाइप पैटर्न्स, दैट इज अ ए पैटर्न। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम इन स्पीयर के पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमको यहाँ पे सिंपली एक क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगा, क्यूबिक यूनिट सेल मिलेगा। तो यहाँ पे जो यूनिट सेल मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमको मिल रहा है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हमको यहाँ पे मिल रहा है, राइट। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी व्हाट, देखो अभी यहाँ पे ये जो स्पीयर है दिस स्पीयर इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस 4 पेयर्स, ये स्पीयर इस स्पीयर के साथ कांटेक्ट में है, ये स्पीयर इस स्पीयर के साथ कांटेक्ट में, इसके साथ है, ये कितने हो गए 4 स्पीयर। उसके नीचे एक होगा और उसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर एक और इसके नीचे एक, 2 स्पीयर कांटेक्ट में हो गए, राइट। तो ये क्या हो गया, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी व्हाट, दैट इज 6 फॉर दिस, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, एंड इट गिव्स व्हाट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, and this layer is also known as what, a pattern. Let's see, then here what happen, अभी ये जो लेयर है स्क्वायर क्लोज लेयर, एक के ऊपर एक लेयर यहाँ पे हमने बिछाई है, तो यहाँ पे जो एक गैप मिल रहा है, एम्प्टी स्पेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस इज अ एम्प्टी स्पेस, दिस एम्प्टी स्पेस इज नोन एज अ voids, दिस एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं दीज आर नोन एज अ voids, एंड these voids आर क्लासिफाइड एज tetrahedron voids and octahedron voids. These voids are classified into 2 types, that is the tetrahedron voids and octahedron voids. अब ये octahedron और tetrahedron voids कैसे मिलते हैं, let's see that. Let's see the tetrahedral voids and octahedral voids. Here यहाँ पे एक हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ए बी टाइप का पैटर्न यहाँ पे है, एक लेयर के ऊपर ए लेयर के ऊपर बी लेयर यहाँ पे बिछाई है, ठीक है। तो क्या होगा, ए लेयर के ऊपर ये बी लेयर है, मतलब इसके डिप्रेशन में एक स्पीयर यहाँ पे पुट किया है, इन दोनों के डिप्रेशन में इस स्पीयर को पुट किया है, इन दोनों के डिप्रेशन में इस स्पीयर को यहाँ पे पुट किया है, और इन दोनों के डिप्रेशन में इस स्पीयर को यहाँ पे पुट किया है। तो यहाँ पे जो वाइड्स मिल रहा है, दिस वाइड्स इज नोन एज अ टेट्राहेड्रल वाइड्स, टेट्राहेड्रल वाइड्स, मतलब यहाँ पे द टेट्राहेड्रल वाइड्स विल बी लाइक दिस, ये 2 स्पीयर यहाँ पे ऐसे, जिनके कांटेक्ट में ये एक स्पीयर है, और इसके ऊपर हमने एक स्पीयर रखा। जब हम इसके ऊपर एक स्पीयर यहाँ पे स्पीयर पार्टिकल पुट करेंगे ऐसा, इन तीनों स्पीयर के ऊपर जब हम एक स्पीयर यहाँ पे प्लेस करेंगे, पुट करेंगे, तो हमको कौन सा वाइड मिलेगा, वी विल गेट द टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड, दैट इज टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड। तो ये कौन सा वाइड होगा, दैट इज अ टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रॉन वाइड। तो टेट्राहेड्रॉन वाइड जो है दैट विल बी लाइक दिस, यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहेड्रॉन वाइड्स, this will be like this, this and this will be like this. Okay,
this point, this point, this point, and this point, that is going to be joined. That will be like this. It gives a tetrahedron voids. This is a tetrahedron voids which is shown in this figure. This is known as a tetrahedral void. You can see in this figure also. यहाँ पे एक स्पीयर होगा, यहाँ पे एक स्पीयर होगा, और यहाँ पे एक नीचे इसके फर्स्ट लेयर का एक स्पीयर होगा, राइट। तो इसके ऊपर यहाँ पे हमने एक स्पीयर रखा, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, देन कम्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नाउ कम्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नाउ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसा होता है, 3 स्पीयर्स आर इन कॉन्टैक्ट, उसके अपोजिट साइड से ऐसे स्पीयर यहाँ पे ऊपर से कांटेक्ट में होंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। दिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी लाइक दिस, यू कैन सी दिस विल बी लाइक दिस। This will be like this, you can see the octahedral voids। मतलब if you observe in this figure, तो ये 2 स्पीयर है यहाँ पे, उसके नीचे एक स्पीयर, और यहाँ पे ये सेकंड लेयर उसके ऊपर, तो ये आपको देगा octahedral voids। This will give the octahedral voids। Let's see the stacking of 2 hexagonal close packed layers. Stacking of 2 hexagonal close packed layers, that is a AB patterns, or we have seen that stacking of 2 hexagonal close packed layers, and from that we will get this pattern is known as a AB pattern. This gives a AB pattern। Now we are going to see the packing of 3rd hexagonal close packed layers। जब 3rd hexagonal close packed layer जो है हम दो वे से डिफाइन करते हैं, that is a covering of tetrahedral voids and covering of octahedral voids। Like this we are defining